نے دیکھا ہے لوگوں کو، میں خود بخود میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میرے گھر میں چاہے کسی کے گھر میں بھی اگر کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو کس طرح روتے ہیں، لیکن باہر مسلمانوں تم کو یہ نہیں ترس آتی کہ امام حسین کی شہادت میں ڈھول تاشے پیٹتے ہو؟ تمہارے گھر میں بھی تو کوئی انتقال ہوتا ہے، اگر تمہارے گھر کے سامنے کوئی ڈھول تاشا لے جا کر پیٹے تو تم برداشت نہیں کر سکتے ہو۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر، اسی کو جنت میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے جس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت چند کا دو اثار پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مدینہ چھوڑ کے کربل میں جا رہے ہیں حسین، کہ مدینہ چھوڑ کے کربل میں جا رہے ہیں حسین، کہ مدینہ چھوڑ کے کربل میں جا رہے ہیں حسین، مدینہ چھوڑ کے کربل میں جا رہے ہیں حسین۔ لپٹ کے رو جیسے آنسو بہا رہے ہیں حسین، لپٹ کے رو جیسے آنسو بہا رہے ہیں حسین، کہ ولا تقول کے تقصیر بن کے نیزے پر، ولا تقول کے تقصیر بن کے نیزے پر، جو شان دیکھیے قرآن سنا رہے ہیں حسین، جو شان دیکھیے قرآن سنا رہے ہیں حسین۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا حبیبنا نبینا مولانا معدن الجود والکرم ممن الحکم والحکیم وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آپ خود بخود جانتے ہوں گے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، آپ حضرات کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود بخود جانتے ہوں گے، لیکن جن لوگوں کو پتہ نہیں ہے میں ان لوگوں سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محترم حضرات، فرمایا گیا ہے کہ جو اس مہینے میں ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایک نیکی 70 گنا زیادہ کر دے گا۔ آپ حضرات سوچیں کہ اس مہینے میں جو ایک نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو 70 گنا زیادہ کر دے گا، لیکن یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں اگر ایک گناہ بھی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ایک گناہ کو بھی 70 گنا زیادہ کر دے گا۔ لیکن میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئے ہیں، اسی مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کے خاطر اپنے نانا جان کی امت کو بچانے کے لیے اپنے سر کو قلم کرا دیا ہے۔
हज़रात मोहतरम करबला का ये जर्रा जर्रा गवाह देता है कि इमाम हुसैन ने अपना सर कटा दिया, अपना घर बार को लुटा दिया, अपने 72 जानिसारों को कत्ल करा दिए। करबला का आज भी एक जर्रा जर्रा गवाह देता है कि इमाम हुसैन ने अपना सर को कटा दिया, मगर मुसलमानों दीन पर आँच ना आने दी। इसीलिए पूरी दुनिया ये पुकार कर कहती है कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस महीने में लोग ढोल ताशे पीटते हैं। क्या इस्लाम, क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यही सबक आपको सिखा करके गए थे? इमाम हुसैन ने अपने नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए अपने सर को कटा कर गए थे। ये नहीं कहे थे कि हमारे शहादत में ढोल ताशे पीटते हैं लोगों। बताइए ये सरासर गलत है कि नहीं, ये सरासर गुनाह है कि नहीं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज हम लोग इमाम हुसैन की शहादत को मजाक बना करके रखे हैं। आज हमको ये नहीं पता कि इमाम हुसैन किस लिए शहादत हुए। इमाम हुसैन जो यजीद थे वो भी मेरे हुजूर का कलमा पढ़ते थे, लेकिन चंद बात के लिए इमाम हुसैन ने उन लोगों से लड़ लिया था। वो यजीदी ये सोचते थे कि हम जो बात कहेंगे इमाम हुसैन उसी पर चलेगा, लेकिन सोचो वो नबी के नवासे हैं, हैदर कर्रार के साहबजादे हैं, फातिमा के लाडले हैं। क्या आपको नहीं पता उनके बाप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस तरह जंग करते थे कि यजीदी ये सोचता था, जब आप जंग करने जाते थे तो यजीदी पहले से अपना भागने के लिए रास्ता तैयार कर देते, सोचते कि ये कोई और नहीं है, ये हैदर कर्रार है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब जंग करने जाते थे तो यजीदी अगर कम रहते थे तो अपना रास्ता पकड़ करके भाग जाते थे। आइए, मैं वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, चंद बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, उसके बाद आप हज़रत से करबला का पूरा बयान सुनिएगा। करबला में एक छोटा सा 6 माह का लाडला जिसे अक्सर लोग अली असगर के नाम से जानते हैं। एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खेमे में प्यास से तड़प रहे थे, खेमे में प्यास से तड़प रहे थे, अपनी पैर को ज़मीन पे मार रहे थे। जब हज़रत इमाम अली मकाम की बीवी से ये हालत देखी न गई तो आप बच्चे को गोदे में लेकर आई और इमाम अली मकाम से कही, ये देखिए अली असगर प्यास की शिद्दत से किस तरह हाथ पैर मार रहा है, मुझसे ये देखी नहीं जा रही है। खेमे में चंद कतरात पानी भी नहीं है कि मैं उस अली असगर के हल्क में डाल दूँ, मेरे पिस्तान में दूध भी नहीं है कि मैं अली असगर को पिला दूँ। हज़रात मोहतरम इमाम अली मकाम की बीवी कहती है, आप इसे लेकर के जाइए और जालिमों को दिखाइए, शायद कोई उसमें ऐसा भी हो जो इमाम हुसैन, जो हज़रत अली असगर की इस भूख को, इस प्यास की शिद्दत से चंद कतरात उसके मुंह में कोई डाल दे। हज़रात मोहतरम हज़रत इमाम अली मकाम स्याह दिल दुश्मनों के सामने लेकर गए और जाकर के कहे, ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे नाना का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मेरे नाने हैं। देखिए ये मेरा छोटा सा बच्चा है, ये 6 माह का बच्चा है, ये आपके आगे चंद कतरात पानी मांगता है, हो सके तो आप इसको चंद कतरात पानी दे दे। हज़रात मोहतरम यजीदी कहते हैं कि ऐ हुसैन, तू बच्चे को दिखाकर खुद पानी पीने के लिए मांगता है। हज़रत इमाम हुसैन कहते हैं, मैं, अगर तुमको मुझ पर यकीन ना हो, अगर तुमको मुझ पर विश्वास ना हो तो इस बच्चे को अपने गोद में दे करके तुम खुद ब खुद पानी पिला दो। हज़रात मोहतरम उनमें का जो सरदार था वो कहता है, मार दो इसको भी, शायद कभी हुसैन
हम लोगों के सामने पानी मांगने के लिए ना आए, इसको भी मार दो। हजरात मोहतरम, उनमें कहा एक बदबख्त, एक हरामखोर इतना बड़ा बदबख्त था कि हजरत अली असगर को ऐसा निशाना लगा करके मारा कि हजरत अली असगर की हल्क में छेदता गया इमाम अली मकाम के बाजू में लगा। हजरात मोहतरम, रिवायत में ये आता है कि जब हजरत अली असगर की हल्क में तीर लगी तो खून का फुवारा उछल पड़ा। लेकिन रिवायत में ये भी आता है कि अगर वो खून का एक भी कतरा ज़मीन पर गिर जाता तो ज़मीन पर आज भी कोई सब्जी वगैरह कुछ नहीं उगता और सुबह क़यामत तक नहीं उगता। अगर उनका खून आसमान की तरफ लहरता तो आसमान से कभी बारिश नहीं होती। बाहर मेरे खुदा का करम देखिए, अपने बंदों पर किस तरह रहम करता है। हजरत अली असगर की खून को हजरत इमाम अली मकाम की देह पर रख जाता है। हजरत मोहतरम, जब हजरत अली असगर की ये हालत देखते हैं तो हजरत इमाम अली मकाम तीर को निकालते हैं और कहते हैं, बारगाह मौला में ये दुआ करते हैं कि रब तबारक व तआला इस हुसैन को भी शहादत के सदक़े में इसे भी कबूल फरमा लेना। समझिए कि वो भी जंग लड़ करके शहीद हुआ है। हजरत मोहतरम, हजरत इमाम अली मकाम खेमे में लेकर आते हैं और अपनी बीवी से उनकी बीवी का देख कर खुश हो जाती है। वो कहती है कि जालिमों ने मेरे लाडले के हल्क में चंद कतरात पानी डाल दिया है, अल्लाह उनका रहम करे। लेकिन सोचिए शाही, जब इमाम अली मकाम उस छोटे से बच्चे को 6 माह का बच्चा, 6 महीना का बच्चा जो कुछ बोल नहीं पाता है, जब लेकर आते हैं इमाम अली मकाम और जब चदरे से हटाते हैं तो क्या देखते हैं कि खून में लटपट है। मैंने देखा है लोगों को, मैं खुद ब खुद मैं भी कह रहा हूँ कि मेरे घर में चाहे किसी के घर में भी अगर कोई इंतकाल हो जाता है तो किस तरह रोते हैं। लेकिन बाहर मुसलमानों, तुमको ये नहीं तरस आती कि इमाम हुसैन की शहादत में ढोलता से पीटते हो। तुम्हारे घर में भी तो कोई इंतकाल होता है, अगर तुम्हारे घर के सामने कोई ढोल ताशा ले जाकर पीटे तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, तुम मार झगड़े पर निकल आओगे। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो नबी के नवासे हैं, नबी के नवासे पर ऐसा करना कैसा जुर्म है। मैं आपसे यही कह देना चाहता हूँ, नेटवी के मुसलमानों, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह कह देना चाहता हूँ कि आप इस खुराफात को दूर कर दीजिए, आप ढोल ताशे को दूर कर दीजिए, आप इमाम अली मकाम की इस सब खुशियों को दूर कर दीजिए। क्योंकि वो खुशी का दिन नहीं है, मुहर्रमुल हराम खुशी का दिन नहीं है, बल्कि ये दुखी का दिन है। मैंने देखा है कि लोगों को किस तरह इमाम अली असगर की शहादत में किस तरह ढोल ताशे पीटते हैं, उनका पुतला बनाते हैं। ऐसा करना जायज़ नहीं है। बस मैं आपसे यही कह देना चाहता हूँ कि आप इन खुराफात को दूर कर दीजिए और मुशर्रफ इस्लाम हुए, इस्लाम की तरीके को सीखिए। अगर आपको इस्लाम का तरीका सीखना है, अगर कोई मसला पूछना है तो आप हजरत से आकर के पूछ लीजिए, ये खुद बताएंगे कि मुहर्रम किस तरह था, करबला का बयान किस तरह था। सोचिए आप हजरात, मैं आपसे यही बात कह देना चाहता हूँ। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।